Okay, welcome back to Asian classes. So आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक पर ही हम बात करेंगे और उसमें से हम स्टैटिस्टिक का मेन जो टॉपिक सब टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. So before we are talking about the mean, okay, so quickly we will revise the data. Okay, what type of data that we are revising? Otherwise, what is a actual definition of mean? Okay, so in that case, there are two types of, we are calculating mean. So either by individual method or either by group method. So mean or average. So these are the two concepts that we have to discuss first. Okay, so average is nothing but, so take example, we are talking about a few individual observations. अगर मान मान के चलो किसी प्लेयर के हम रन्स के बारे में बात कर रहे हैं 10, 12 प्लस 13, उसने 3 मैचेस खेले तो हम क्या करते हैं तीनों का सम करते हैं डिवाइडेड बाय 3. सो दैट वी कॉल्ड एज एवरेज. ओके, और मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस. सो पूरे को just we will add this number and divide it by 3. So that one we called as a mean. So for this case, if you're if you're talking about a number of observations, there are n number of observations are there. So let's assume it A1 plus A2 plus A3. Likewise, up to AN observations are there. And number of observations, let's suppose n. तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं? Algebraic sum of I running from 1 to n AI divided by ni. Okay, or in shortly, algebraic sum of A n divided by n. So likewise we will calculate the mean, or we called as a average. Now next one, if you are talking about a mean, ठीक है, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए बहुत से मेथड है. यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है. So first method is direct method, second method is assuming method, third method is a step deviation method. Okay, so in shortly what we are calculating middle term. Okay, mean is nothing but middle term of observations. Middle term of observation. Clear है? चलो, so quickly we will move to the next example. और एक example लेके हम content को आगे ले चलते. So let's talk about a mean. Suppose number of students. Suppose 20. Okay, in A division. Now 30 students in a B division, and once again 40 students in a B division. Oh, sorry, C division. So for this observation, क्या करना है आपको? Just you have to calculate the mean or middle term for this. So by the formula, sum of xi, okay, divided by n. So where I running from 1 to n, ये तो आपको पता है. So sum of xi means x stands for observation, first, second, and third. So write down here 20 plus 30 plus 40 divided by 3. So 20 plus 30, 50, 50 plus 40. Okay, it's a 90 upon 3. So 3 3s are 9, 30 is the mean of given data. So likewise, we have to calculate the mean for individual term or ungrouped data. So this is all about a ungrouped data. This is all about ungrouped data. Similarly, when the numbers or the scores which is given in a large format.
ओके, एंड लार्ज फॉर्मेट मीन्स सपोज 20 ऑब्जर्वेशंस, 50 ऑब्जर्वेशंस, 60 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं. ओके, एंड so the data which is in a group form. Okay, so for such type of larger data, so what we are using, we are using that formula for a group one. अभी ये हो गया. अभी जो हमने किया, this is a method to calculate a mean of ungrouped data. Which one? Ungrouped data. मतलब हर एक क्लास के बारे में हमने इंडिविजुअल डेटा कलेक्ट किया था. अगर मान के चलो बच्चों की हाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर क्लास में 20 बच्चे हैं, तो हम 20 बच्चों की हाइट ले लेंगे कि किसी की 5 है, किसी की 4 है, किसी की 4.4 है, 4.3 है. तो ये पूरे के पूरे 20 बच्चों का हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. तो इसमें क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल हम बात कर रहे हैं, किसी का हमने ग्रुप नहीं बनाया. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इसको हम कहेंगे अनग्रुप डेटा. अब नेक्स्ट एग्जांपल, अगर लार्ज केसेस में अगर 50-60 बच्चों के बारे में बोला है, ओके, और आपको वो डेटा ग्रुप फॉर्म में दिया है, तो for that condition, so we have to find a mean for a second one, which is group data. Group data. Suppose take example 20 बच्चे दिए हैं, और 20 बच्चों के अगर मार्क्स दिए, सपोज 10 आउट ऑफ, अगर मान के चलो 2 से 3 कितने बच्चों को मिले हैं, 3 से 5 कितने बच्चों के हैं, 5 से 7, 7 से 9, ठीक है, एंड 9 से 11. ऐसे जो डेटा दिया होता है ये ग्रुप में दिया होता है. इंडिविजुअल है क्या? नहीं है. 2 से 3 तक, मतलब अगर 2 से 3 तक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक इस फॉर्मेट में ग्रुप फॉर्म में डेटा है. सो दैट इज अ ग्रुप डेटा, एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग अ डिफरेंट फॉर्मूला. तो अगर मान के चलो इस ग्रुप के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला. सो क्विकली राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर दिस. सो मीन is equal to, mean which is represented by symbol x, is equal to sum of fi xi, sum of fi xi divided by n. So fi xi, this is a product of class mark into frequency, and n, which is the sum of total frequencies. मतलब कितने ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं, इसके बेसिस पर से आपको क्या करना है, डेटा फाइनलाइज करना है. ओके, चलो. सो क्विकली गो बैक टू द टेक्स्ट बुक. ओके, सो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट मेथड, ओके, विच इज अ direct method. So first method, which we call it as a direct method to find mean. Clear है? चलो, direct method to find a mean. So अब मैं एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. तो क्वेश्चन में रीड करते करते क्या करूँगा, ये जो डेटा हम इस टेबल में टैबुलर फॉर्म में फिल करेंगे. ठीक है, मान के चलो हम फॉर्मूला और फॉर्मूले के साथ साथ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना जो डेटा है वो डेटा इस टेबल में फिल कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा क्या फिल करना है, तो पहला है क्लास. ठीक है, नेक्स्ट वन क्लास मार्क्स. ठीक है, क्लास मार्क. थर्ड वन फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ वन एफ आई इंटू एक्स आई, क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी. अब क्लास जो है, अभी सिंबल में अगर लिखेंगे हम, तो क्लास एज यूजुअल हम क्लास ही कंसिडर करेंगे. अब क्लास मार्क है वो ऑलवेज हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. सो n number of observations are there, so let's write down here xi. So for that frequency we represented by f. तो बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 4, 5, 6,
कुछ भी ऐसे ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, तो दैट्स वाई वी राइटिंग हियर एक्स आई। अभी बच्चों को डाउट होगा कि आई का मतलब क्या है। आई इज द नंबर, आई स्टैंड्स फॉर द नंबर विच इज फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। मतलब आपका ऑब्जर्वेशन 10 है तो आई की वैल्यू 1 to 10। अगर ऑब्जर्वेशन 5 है तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक हो सकती है। So that is the value of I. So this is a rough data. Now quickly go back to the question. So before that, just we will write a formula. X is equal to sum of fi xi upon capital M. ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया बिकॉज पूरे जो कंटेंट है हम यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं, सो फिर लगने वाला है, इसलिए एक रिकॉल या फिर क्विक रिप्लाई, क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर हमने ये यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब मान के चलो एक डेटा सर्वे कलेक्ट किया है। सो टाइम फॉर ईच कंप्लीट वर्क, अगर मान के चलो एक वर्क टास्क जो है वो असाइन किया है किसी बच्चे को, तो उनको वो टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा वो टाइम दिया हुआ है। सो क्लासेस क्या कहा किस में आ जाएगा, क्लासेस नथिंग बट टाइम इन आवर। ओके, टाइम इन आवर्स। सो क्लास मार्क ऑब्वियसली एक्स आई लिखा है हमने, फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिलेगा वो लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज लाइक दैट 15 to 19 आवर्स। अगर एक काम करने को 15 से 19, ठीक है, 15 से लेकर 19 घंटे लग रहे हैं, वो कितने लोग हैं, वो लोग हैं 10। 20 से 24, 22 24 कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। नेक्स्ट वन 25 to 29, 25 to 29 कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। तो मैं क्वेश्चन रीड करते करते डेटा टेबल फिलअप कर रहा हूँ। 30 to 34, 30 to 34 कितने लोग हैं, 8 हैं। नेक्स्ट वन 30 to 34, 35 to 39, 35 to 39 कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। कितने लोग हैं, 5 लोग। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, एक तो क्लास तो हमें गिवन डेटा में था, मिल गया, फ्रीक्वेंसी भी टेबल में था या फिर क्वेश्चन में था तो हमने लिख लिया। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इज एक्स आई। ओके, एक्स आई मीन्स क्लास मार्क। ओके, एक्स आई इज नथिंग बट क्लास मार्क्स। अब 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है क्लास मार्क। ओके, क्लास मार्क इज नथिंग बट अपर लिमिट, ओके, प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देख लो फर्स्ट केस के लिए अपर लिमिट 19 प्लस लोअर लिमिट 15 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो, सो 15 प्लस 19 कैलकुलेट कर दो, 9 10, 10 प्लस 4 14, carry 1 1 2 3, so 34 upon 2। so 34 upon 2, 17 में 34, 17 2 जा 34। so quickly go back to your table and write on here class mark is a 70। clear है, now repeat the same process for second observation। okay, so second observation के लिए भी क्या करना है, हमें वही रिपीट करना है। so 20 plus 24, 20 plus 24, 20 20 40 40, 44 upon 2, 22। clear है, so write down here 22
आपने एक बार नोटिस किया होगा, मैंने ये दो ही एक्चुअली मैं एक कैलकुलेशन करके भी आपको ये आंसर बता सकता था कैसे आएगा आगे वाला। ठीक है, अभी मैंने दो एग्जांपल सॉल्व करके दिए हैं। अब लेट्स चेक व्हाट इज अ आंसर फॉर दिस। ओके, अब यहाँ पे देख लो, मैंने क्या किया, 15 जो मेरा पहला नंबर था, ठीक है, सो आई विल शो हियर, सपोज दिस इज अ 15 और दिस इज 20। अब आपने नोटिस किया क्या, 15 में से हमने कितना ऐड किया, दो ऐड किया, तब जाके हमारा आंसर 17 बना। क्लियर है, जो हमने पहला कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से। अब अगर मान के चलो दूसरा कौन सा है, 20 + 2, तो कितना बनेगा, 22 बन गया। अब 25 + 2 कितना बनेगा, 27। 30 + 2 32। 35 + 2 37। बाकी के कैलकुलेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये आपको पता है। तो एक तो इसके पीछे रीज़न क्या है भाई, इसका जो इंटरवल है, क्लास विड्थ है, वो क्लास विड्थ सेम है। अगर क्लास विड्थ सेम रहेगी तो जो डिफरेंस हम ऐड कर रहे हैं वो भी सभी क्लासेस में सेम रहेगा। इसलिए मैंने पहले में 2 ऐड कर दिया, तो बाकी सभी में मैंने 2 2 2 2 ऐड कर दिया और आंसर हो गया। इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, अगर पहला वाला कैलकुलेशन आपका सही आ गया फिर दूसरे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पे। चलो, अब तीसरी स्टेप में वो देख लो क्या दिया हुआ है, एफ आई एक्स आई। सो हियर इज एफ आई एक्स आई, मतलब क्या होगा, एफ आई विल हाईलाइट दिस इज एफ आई, दिस इज एक्स आई। ओके, चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ अभी फॉर फर्स्ट केस। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज एफ आई, दिस इज एक्स आई। ओके, एफ आई एक्स आई मीन्स आई स्टैंड फॉर, मैंने पहले भी बोला 1 2 3 4 5। ओके, ये पहला ऑब्जर्वेशन है तो ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा f1, x2 f2, x3 f3, x4 f4, x5 f5। क्लियर है, चलो अब सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। 17 10 जा 170। ठीक है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 22, 15 दूनी 30 हो गया, 3 15 दूनी 30, 3 33, 330। चलो नेक्स्ट वन, 12, ठीक है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 27, आंसर इज 324, 324। क्लियर है, अब दूसरा आ रहा है 256, so write down here 256 and last one is 185, last one is 185। चलो, यहाँ तक हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। अब एक दो चीज़ें हमें यहाँ पे नोटिस करनी है, यहाँ पे कैपिटल एन बोला है, ठीक है, कैपिटल एन। सो कैपिटल एन, एन स्टैंड्स फॉर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मतलब क्या होगा, वेर इज फ्रीक्वेंसी, ओके, 10 + 15 + 12 + 8 + 5, तो 10 20 30 30 40 40 50। Okay, so your answer is 50, so write down here. Similarly sum of, so this is nothing but n is equal to 50 हो गया। चलो इसको बॉक्स कर दो बिकॉज ये हम आगे यूज करने वाले हैं। अब 170 330 324, अभी सेम सम ऑफ एफ आई एक्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ एफ आई एक्स है, ये क्या है, f1 x1, f2 x2, f3 x3, f4 x4, f5 x5। तो इस सब का क्या करना है, हमें एडिशन लेनी है। तो अगर मान के चलो मैंने टोटल सबको ऐड कर दिया तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका 1265, 1265। Okay, now quickly go back to your formula. So what is the formula for this? Okay, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। So by the formula of mean is equal to x, mean is equal to x is equal to
sum of fi xi divided by n. Sum of fi xi. So fi xi is nothing but 1 2 6 5 divided by n is equal to 50. अब इसको सॉल्व करो. So 1265 divided by 50, your answer is 225.3. So your answer is 25.3. Clear? So 25.3 is your answer. Means for this whole observation, so we call it as mean. So answer is mean of time taken to complete the given task is 25.3 hours. ये जो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू राइट आंसर लाइक दिस. दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ओवरऑल हमने क्या किया ये सब कुछ इस लाइन में हाईलाइट हो जाएगा. क्लियर है? और ऐसे बॉक्स बना के लिखो ताकि एग्जाम में भी आपको तो थोड़ा आंसर आपका अट्रैक्टिव दिखे. क्लियर है? ओके. सो लाइकवाइज वी हैव टू फाइंड अ मीन फॉर इट. सो चलो अभी ये हमने एक एग्जांपल सॉल्व कर दिया. अभी क्विकली हम क्या करेंगे, दूसरे एग्जांपल की तरफ चलेंगे. सो आई विल राइट द डेटा फॉर इट एंड नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन रीड करेंगे या फिर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे उसमें भी हमें क्या करना है, मीन ही डिटरमाइन करना है. बट मेथड उसका सेम है बट कंटेंट अलग है. ओके. सो आई विल राइट अ क्वेश्चन हियर. So we are talking about a percentage. So I will read a question. Percentage of a marks of a 50 students. Okay. यहाँ पे देख लो number of students. कितने स्टूडेंट है? 50 है. तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितने आएंगे? 50 आएंगे. तो एक ध्यान में रखो हमारा n मिल गया. n is equal to 50. कितने ऑब्जर्वेशन है? 50. क्योंकि 50 बच्चे हैं उनके मार्क्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. So following table which is gives a percent mark of a student. So find the mean of a percentage. Find the mean of percentage. Clear है? So हमें क्या करना है, mean find out करना है. So mean is equal to question mark. Okay. चलो mean निकालना है. अभी पहले का एज यूजुअल टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. ओके. मैं टेबल फिर से एक बार लिखूंगा क्योंकि टेबल जब तक आप बार बार टेबल नहीं लिखते हो तब तक आपका टेबल का प्रैक्टिस नहीं होगा. क्योंकि टेबल तीन टाइप के टेबल, तीन चार पांच टेबल हम यूज करने वाले हैं ओवरऑल इस सेशन, मतलब मीन मोड मीडियन में तो कंफ्यूज हो जाओगे. सो फर्स्ट इज क्लास, देन सेकंड वन क्लास मार्क, थर्ड वन फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ वन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मार्क. क्लास मार्क तो क्लास तो ग्रुप में आ जाएगा. मार्क्स हम एक्स आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एफ आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये बन गया एफ आई एक्स आई. ठीक है. चलो टेबल कंप्लीट हो गया. अब रीड करते हैं डेटा. सो परसेंट बच्चों का कितना है, 0 से लेकर 20 तक. 0 से 20. नेक्स्ट वन 20 to 40. नेक्स्ट वन 40 to 60. 60 to 80. एंड लास्ट वन 80 to 100. तो उसके लिए हमें डेटा तो मिल गया. अब बच्चे कितने देख लेते हैं. ठीक है. सो कितने बच्चे हैं, अगर मान के चलो हमने डेटा कलेक्ट किया है. सो फर्स्ट में
3, 7, next one 15, 25, 15, 20 and 5. तो ये आपको डेटा दिया हुआ है. So this is the data for students and a percent mark score by the student. अब ऑलरेडी ऊपर क्या है, 10 इज इक्वल टू 50 है, तो यहाँ पे लिख दो 10 इज इक्वल टू 50, क्योंकि सम भी करोगे तो इसका आंसर 50 ही आएगा, ना कम ना ज़्यादा. अगर ऐसा हो रहा है कम ज़्यादा तो आपका आंसर गलत है. नेक्स्ट वन, अब क्लास मार्क निकालना है. ओके, क्लास मार्क मतलब होता है मीन ऑफ लोअर लिमिट अपर लिमिट. तो पहला तो बहुत ही आसान है, 0 + 20, क्लास मार्क कितना आ जाएगा. सो क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. 20 divided by 2 is equal to 10. 20 divided by 2 is equal to 10. तो फर्स्ट केस में क्लास मार्क हो गया आपका 10. क्लियर है. अब मैंने पहले भी शॉर्टकट बोला है. देखो यहाँ पे हर एक में 10 डिफरेंस कितना है, 0 से लेकर 20 तक 20 का डिफरेंस है. 20, 20, 20 मतलब थ्रू आउट दिस क्लासेस डिफरेंस सेम है. तो ये जो नंबर ऐड होगा वो भी सेम होगा. 0 + 10, 10 बन गए. ठीक है. अब 20 + 10, 30, 40 + 10, 50, 60 + 10, 70, 80 + 10, 90. क्लियर है. सो 10, 30, 50, 70, 90 ये आपका बन गया क्लास मार्क. ठीक है. चलो, अब फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करते हैं. तो फ्रिक्वेंसी तो ऑलरेडी हमने लिखी है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ FI/XI. सो FI/XI means this is FI, this is XI. 10 3s are 30. Good. 7 multiplied by 30 to 10. 15 multiplied by 50. 750. Okay. 20 multiplied by 77. 7 2s are 14. So 20 as it is आ जाएंगे. 90 multiplied by 5. 9 5s are 45 और ये एक 0 as it is. Now add these numbers. 30 plus 210 plus 750 plus 4 1400 plus 450. अब इन सबको ऐड करोगे तो आंसर मिल रहा है 2840. 2840. तो ये हो गया आपका सम ऑफ FI/XI. अब क्विकली पुट अ फॉर्मूला. मीन x is equal to sum of FI/XI अपॉन n. तो FI/XI कितना आ रहा है, 2840 divided by n is equal to 50. So 2840 divided by 50. अब सिंपल सी बात है, 0 0 will cancel with each other. Okay. Now 284 divided by 5 अगर करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 56.8. 56.8 is your आंसर. ठीक है. चलो, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, you have to write an answer. So therefore the mean of percentage of marks of 50 students is 56.8%. Clear. So likewise we have to write a answer, and this is the method, or this is the correct way to write a answer. Clear. So likewise we have to
सॉल्व द क्वेश्चन। जब क्विकली देख लो ये जो डेटा हमने लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका क्लास, क्लास मार्क, फ्रिक्वेंसी एंड फ्रिक्वेंसी इनटू क्लास मार्क। तो टेबल में अगर मान के चलो ये आपके दिमाग में है, ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, सो each and everything which is already given or mentioned in the table, so only we have to multiply this, and then afterwards at the last we have to divide it by n. ठीक है, so fi xi divided by n. चलो, so write down next question, and okay, so let's see what is the last question. So the question is like that: the maximum temperature in a degree Celsius of a 30 towns. Okay, data which is collected first, which is a temperature which is given in a degree Celsius, and which is data which is collected from 30 towns, TOWN. So कितने ऑब्जर्वेशन है? 30, तो 30 टाउन इज नथिंग बट n। क्लियर है? चलो, तो ये रीड करते करते आपको डेटा मिल जाएगा। सो n तो मिल गया। नेक्स्ट, so it shows in the following table and find the mean of a maximum temperature. Okay, mean of a maximum temperature. So I will write a question here. So find mean of maximum temperature equals to question. क्लियर है? चलो, यहाँ तक तो डेटा हमें मिल गया। सो अभी मैं टेबल जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करते करते मैं टेबल फिल करूंगा। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, तो लेट्स बिगिन विद दिस टेबल। फर्स्ट वन इज अ क्लास, राइट डाउन हियर क्लास, प्रॉब्लम कर रहा है ये। ओके, सो राइट डाउन हियर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट वन क्लास मार्क्स, then frequency, then fi into x. Class mark is nothing but x, frequency is nothing but f, f into x। अभी ये आपके समझ में आ जाएगा। चलो, सो मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्लास में क्या आ जाएगा? मैक्स टेम्परेचर। सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? 22 to 20, sorry, 24 to 28, 24 to 28, 28 to 32, next one 32 to 36, 36 to 40, and last observation 44, 40 to 44. Okay, next one, क्लास मार्क फाइंड आउट कर लो। 24 to 28, 24 to 28। अगर मान के चलो अभी एज यूजुअल हम सॉल्व करते हैं, 24 प्लस 28 अपॉन 2। सो 8 4 12, 2 कैरी हो गया, 2 2 4 5, ओके, 52 अपॉन 2। सो 52 बाई 2, 26 यूज 52। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते 26। अब यहाँ पे देख लो, हर केस में जो डिफरेंस है, और क्लास विड्थ बोलते हैं उसको हम, क्लास लेंथ, क्लास विड्थ सेम है, तो इस केस में बाकी जो नंबर ऐड करेंगे वो भी सेम रहेंगे। मतलब मान के चलो 24
25 26 हमने दो ऐड कर दिया, 28 प्लस 2 30, 32 प्लस 2 34, 36 प्लस 2 38, 40 प्लस 2 42। अब ये कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन हमने रैंडमली ले लिए या फिर ऐड करके हमने सॉल्व किए, बट हर बार उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रिक्वेंसी देख लो क्या है, 4 5 7 8, 4 5 7 8, and last one is a 6. Now last, what is the last step? The last step is only we have to multiply this 26 multiplied by 4, so which is around 104 is your answer. So 3 बचे 15 means 150, 34 into 7, 7 728 means 8, 3 मतलब हो जाएगा 23, so 23, so 8 8 are 64, 4 6 6, then 30, 42 6 are 6 2 are 12, 12 and 6 4 are plus 1, so 25 to 52. So next term, so we have to calculate a capital N and fi xi, sum of fi xi. So capital N कितना आ जाएगा, 4 5 7 8 6। ऑलरेडी तो मैंने यहाँ पे दिया है n इज इक्वल टू 30, तो ऐड करके देख लो। So 4 plus 5 5 plus 7 7 plus 8 8 plus 6, अगर ऐड करोगे so your answer is equals to 30. And if you added the both the term 104 150 238 304 254, so your answer is 1048. Okay, अब मान के चलो ये सिर्फ डेटा हमारे पास है, so just simply put a formula, x is equal to sum of fi xi upon n, sum of fi xi divided by n. Fi xi means 1048 divided by n, n is equal to 30. If you simplify this, so your answer is 34.9. Answer is 34.9. So likewise we have to calculate the value. So answer answer is mean of temperature of 30 cities is 34.9. तो मतलब 34.5 है, क्या है, मिडल टेम्परेचर। चलो, सो लाइकवाइज हमने आज जो मेन का जो कंटेंट था, वो मेन का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर दिया। सो जो नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट so in the next session we will talk about a mode, as well as we will solve examples. Okay, we will solve examples from a textbook. Okay, so thanks for watching.